اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی طبی بنیادوں پر منگل تک عبوری ضمانت منظور۔ عدالت کا 20-20 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کو ضمانت پر اعتراض نہیں، چیئرمین نیب نے بھی ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بار بار کہنا کہ آپ ذمہ داری اٹھائیں، تو یہ ظاہر ہے کوئی انسان جو ہے کسی کی زندگی اور موت کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کام جو ہے وہ پروردگار کی اتھارٹی ہے اور اللہ کی اتھارٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ نواز شریف کی سزا ختم نہیں ہوئی، طبی بنیاد پر معطل کی گئی۔ سابق وزیر اعظم کو منگل تک عارضی ریلیف مل گیا۔ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اعوان کی نیوز کانفرنس کہتی ہیں ضمانت کا اختیار حکومت کا نہیں عدالت کا ہے۔ جب زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہم ذمہ داری کیسے لے سکتے ہیں؟ نواز شریف کا علاج کس اسپتال میں کرایا جائے گا، اس کا فیصلہ شریف خاندان کرے گا۔ لیگی رہنما مریم اورنگزیب کی گفتگو، کہا نواز شریف کو کل مائنر ہارٹ اٹیک ہوا۔ طارق فضل چودھری کی بھی تنقید، کہا حکمرانوں کی بے حسی کو قوم دیکھ رہی ہے، جو تمسخر اڑایا گیا اسے ہم نہیں بھولیں گے۔ نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں، بیماری کے وقت مذاق نہیں کیا جاتا۔ سابق وزیر اعظم کے وکلاء کی میڈیا سے گفتگو۔ نواز شریف کا سروسز اسپتال میں علاج جاری، پلیٹلیٹس بڑھنے لگے، رات معمولی ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ سابق وزیر اعظم کے علاج کے لیے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے ہارٹ اسپیشلسٹ کو تعینات کر دیا گیا۔ نواز شریف کو معمولی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، دل کے پٹھے ٹھیک ہیں، شوگر بھی کنٹرول میں ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین کی پریس کانفرنس، 1 ہفتے میں پلیٹلیٹس 1 لاکھ سے زائد ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر طاہر پر امید، نواز شریف کو ہر ممکن سہولت دی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت۔ ڈیل والا کوئی کام نہیں ہے، جس کا نام عمران خان ہے وہ زندگی میں ڈیل نہیں کر سکتا۔ اگر یہ امن و امان کے ساتھ اپنا مارچ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن اگر ڈنڈے دکھا کر توڑ پھوڑ کا کوئی ارادہ ہے تو پھر انشاءاللہ قانون رستہ بنائے گا، سختی سے نپٹا جائے گا۔ نواز شریف کا معاملہ کوئی ڈیل نہیں، ڈیل والا کام وزیر اعظم کبھی نہیں کریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب میاں اسلم اقبال نے صاف صاف بتا دیا، کہتے ہیں فضل الرحمان روزگار کی خاطر سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں، اگر وہ ڈنڈا بردار ساتھ لائے تو پھر سختی سے نمٹیں گے۔ آزادی مارچ میں 1 دن باقی، حکومت نے کمر کس لی۔ 15 کروڑ سیکیورٹی فنڈز کی منظوری، 700 کنٹینرز اسلام آباد پہنچا دیے گئے۔ آنسو گیس کے 10,000 شیل، 1,000 اضافی پروٹیکشن شیلڈ منگوا لی گئیں۔ ریڈ زون کی سیکیورٹی مزید سخت۔ آزادی مارچ کے حوالے سے حکومت نے لچک دکھانا شروع کر دی۔ اپوزیشن کو پریڈ گراؤنڈ کے علاوہ ڈی چوک یا چائنا چوک پر جلسہ کرنے کا آپشن دے دیا۔ اکرم درانی کہتے ہیں مارچ کا دورانیہ طویل نہیں ہوگا، ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ بھی کہا ہمارے ڈنڈے ہمارے تحفظ کے لیے ہیں۔ فضل الرحمان مہنگائی کے ذمہ داروں کی حمایت کر رہے ہیں، کسی کو ڈی چوک پر احتجاج کی اجازت نہیں، قانون شکنوں سے سختی سے نمٹیں گے۔ شوکت یوسفزئی کا ویڈیو بیان، کہا وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے۔ فضل الرحمان امن کا چراغ کیوں بجھانا چاہتے ہیں؟ فردوس عاشق کا سوال، قوم نے امن کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ مولانا زید اور انا کے قول سے باہر نکلیں، مسائل کا حل بات چیت سے ہی نکلتا ہے۔ معاون خصوصی کا ٹویٹ۔ سیاسی رہنما کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتے ہوئے جیل میں بند کر دیے گئے ہیں، اور اپوزیشن کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا کہ احتجاج کا راستہ اپنایا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے حکومت کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا۔ کنکوٹ میں جلسے سے دبنگ خطاب، کہا مہنگائی نے جینا دو بھر کر دیا۔ نئے پاکستان سے تو پرانا بہتر تھا، نیا پاکستان بھیانک خواب قرار دے دیا۔
रहीम यार खान में पसंद की शादी जान ले गई। थाना कोट समाबा की हुदूद में 15 अफराद का हमला, कुल्हाड़ियों के वार से मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। अब्दुल सत्तार और शबाना बीबी की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। भलवाल में 12 साला बच्चे का कत्ल, अदालत 2 मुजरिमों को 2 बार सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। कमसिन बच्चे के वालिदैन का मुजरिमों को सरेआम फांसी देने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत मौशी टीम का इजलास, मुल्की इक्तिसादी सूरत हाल पर मुशावरत। FATF पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने टीम की कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी की एक और मिसाल, सियालकोट में 1000 साल कदीम मंदिर खोल दिया गया। शवाला तेजा सिंह 72 साल से बंद था। हिंदू बरादरी का हुकूमत से इजहार तशक्कुर। अस्सलामुअलैकुम, आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे नवाज शरीफ को मिलने वाले बड़े रिलीफ से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की मंगल तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस अतहर बिनिल्लाह ने रिमार्क्स दिए, वफाक, पंजाब हुकूमत और चेयरमैन नैब इस मामले पर खुद भी कोई अहम फैसला करें। अदालतें सियासी मामलात में उलझना नहीं चाहती। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मौतली के लिए दायर मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर बिनिल्लाह और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत की। नवाज शरीफ की जानिब से मुनव्वर दुग्गल एडवोकेट अदालत में पेश हुए। हुकूमत की नुमाइंदगी एडिशनल अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने की। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी और नैयर रिजवी भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस अतहर बिनिल्लाह ने रिमार्क दिए, सूबाई हुकूमत को इख्तियार है कि अगर मुजरिम की जान को खतरा लाहक हो तो सजा मुअत्तल कर दे। क्या तिब्बी बुनियाद पर जमानत की दरखास्त अदालत में आना चाहिए थी? हुकूमत मुखालफत करे तो दरखास्त जमानत मुस्तरद कर देते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि इंसानी बुनियादों पर दरखास्त जमानत पर एतराज नहीं। अदालत ने तवील समाअत के बाद 20-20 लाख रुपए के 2 मचलकों के एवज तिब्बी बुनियाद पर साबिक वजीर आजम की मंगल तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया, जबकि वज़ीर आला पंजाब को मंगल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ आसिफ नवीद से। जी आसिफ नवीद, आज आप पूरा दिन इस मामले को रिपोर्ट करते रहे हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? रिलीफ का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है, अब क्या सूरत हाल नजर आ रही है आपको? देखिए, अब सूरत हाल ये है कि अब पंजाब हुकूमत भी और इस हवाले से जो वफाकी हुकूमत है और नैब प्रोसिक्यूशन टीम है, ये मंगल को अपना एक बार फिर मौक़िफ़ देगी। आज जिस पॉइंट पर 17 दिन समाअत जारी रही उसमें कोई तफसीली बहस नहीं हुई, कोई दलाइल नहीं दिए गए। अदालत ने एक पॉइंट पर जो है वो लाकर सबको खड़ा कर दिया कि क्या वफाक को, पंजाब हुकूमत को और ये नैब को कोई एतराज़ है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को ज़मानत पर रहाई पर, और अगर एतराज़ है तो इस हवाले से बयान हल्फी दाखिल किया जाए कि कोई भी इस किस्म से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जान को नुकसान होता है या सेहत को नुकसान होता है, उसकी जिम्मेदारी वफाक की, पंजाब हुकूमत की और नैब की होगी। तो जिस पर 2 बार मौका दिया गया, लेकिन दोनों बार जो नैब की टीम है वो भी, वफाक के नुमाइंदे वो भी और जो पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे थे वो भी इस बात पर अदालत को नहीं मुतमईन कर सके। उन्होंने कहा कि हम बयान हल्फी नहीं दे सकते, इस हवाले से हम नहीं कह सकते, हमारा मौक़िफ़ यही है, लेकिन हम बात करना चाहते हैं। अदालत ने बात करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा सियासी बातें नहीं होंगी, कोई बात नहीं होगी, सिर्फ एक पॉइंट बताएं, अगर आपको एतराज़ है तो बयान हल्फी दाखिल करें, अगर एतराज़ नहीं तो हम जमानत देते हैं। लेकिन जिस वक्त आखिरी बार मौका दिया गया तो जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल उन्होंने जाकर बताया कि हमें एतराज़ तो हमारा मौक़िफ़ वही है, लेकिन वो खामोश रहे, जिस पर अदालत का ये कहना था कि फिर हम वज़ीर आज़म को और वज़ीर आला को और चेयरमैन नैब को नोटिस देते हैं कि वो उसकी जिम्मेदारी तमाम तर, अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी उन पर होगी। तो फ़ौरन इस मौके पर जो नैब के प्रोसिक्यूटर उन्होंने कहा कि हमें नैयर रिजवी उन्होंने कहा कि हमने चेयरमैन नैब से हदायत ली हैं। उन्होंने कहा कि तिब्बी बुनियादों पर, इंसानी हुकूक की बुनियाद पर अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को ज़मानत पर राय दी जाती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। जिसके बाद अदालत ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को 20-20 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंगल तक अबूरी जमानत पर रहाई के अहकामात जारी कर दिए हैं। उनकी रोबकार भी जमा हो चुकी है, उसके साथ साथ तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो चुका है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक 29 अक्टूबर को जो वज़ीर आला पंजाब है उनको ज़ाती हैसियत में 1:30 बजे बेंच के सामने पेश होने की हिदायत की गई है, क्योंकि जो दूसरी उनकी जो केस जो इस फैसले को कलअदम अल अजीजिया रेफरेंस का जो फैसला उसको कलअदम करार देकर जमानत पर रहाई की जो मेन अपील है
है वो मंगल को समात होगी, उसमें वज़ीर आला पंजाब पेश होंगे और पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ देंगे। क्योंकि आज एक बात वाज़ह तौर पर चीफ जस्टिस अतर मनल्लाह ने कही कि ये हुकूमत हम पर क्यों डाल रही है, सारे मामला अदलिया पर क्यों डाले जा रहे हैं, जबकि ये पंजाब हुकूमत या हुकूमती सतह पर एक फैसला होना चाहिए था। क्योंकि कोई भी कैदी अगर बीमार होता है तो प्रिजनर रूल्स 143 की सेक्शन के तहत उसको रिलीफ फराहम करना, उसका इलाज मुआवजा कराना, उसकी बिल्कुल जी, तिब्बी बुनियाद और इंसानी हमदर्दी के हुकूक की बुनियाद पर यह जमानत दी गई है। तफसीलात बता रहे थे हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ के वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह ने फैसले पर अदालत को शुक्रिया अदा किया और कहा कि हतमी फैसला मंगल को होगा। अल्लाह ताला इंसाफ का बोल बाला करेगा। कौम नवाज शरीफ की सेहतियाबी की दुआ करे। हम अल्लाह के मशकूर हैं, हम वकला के पूरे पाकिस्तान के जिन्होंने दुआएं की हैं। मीडिया ने इस मसले को हाईलाइट किया है जिसके खौफ की वजह से उन्होंने मियां साहब का इलाज शुरू किया है। हम मशकूर हैं अदालत के भी, जिन्होंने इंसाफ के तकाजे रखते हुए और कहा कि हम उनको इंटरम बेल देते हैं। इंशाअल्लाह फाइनल फैसला जो है वो ट्यूसडे को होगा। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि नवाज शरीफ का इलाज किस अस्पताल में कराया जाए, इसका फैसला शरीफ खानदान करेगा। हुक्मरानों की बेहिसी को कौम देख रही है। ट्रीटमेंट की वजह से उनका प्लेटलेट काउंट बेहतर होता है, लेकिन खुद वो ड्रॉप कर जाता है और इसका डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। ये शरीफ खानदान और शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ फैसला करेंगे कि वो इसी हॉस्पिटल, ये फैसला अभी किया जाएगा कि उन्होंने इसी हॉस्पिटल में रहना है। तो कल माइनर हार्ट अटैक हुआ था जिसकी तमाम तफसीलात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई। मैं ये कहूँगा इन हुक्मरानों से कि आप ये रिवायती बेहिसी पूरी कौम जो तमस्कुर आपने उड़ाया है, ये मुस्लिम लीग नून के वर्कर एक वर्कर ये हम भूलने वाले नहीं हैं। जिस तरह पूरी कौम उनको लिए दुआएं कर रही है अपने मोहसिन के लिए, हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन दुआओं के सदके ये मियां नवाज शरीफ साहब को इंशाअल्लाह जल्द सेहतयाब करेंगे। नवाज शरीफ की सजा खत्म नहीं हुई, तिब्बी बुनियाद पर मुअत्तल की गई है। साबिक वज़ीर आज़म को मंगल तक आर्जी रिलीफ मिल गया। मामले खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं जमानत का इख्तियार हुकूमत का नहीं अदालत का है। जब जिंदगी अल्लाह के हाथ में है तो हम जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं। आर्जी सजा की मुअत्तली हुई और मैं ये समझती हूँ कि जो ये अबूरी रिलीफ मियाँ साहब को अदालत की तरफ से मिला है, मंगल को जब इस फैसले को उसके तफसील से बहस होगी, बाकी एस्पेक्ट उसके अदालत आलिया जांचेगी, तो उसके बाद वो हतमी जो अदालत का फैसला है उसके बाद आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म को अदालत से रिलीफ तो मिल गया, लेकिन तबीयत में बेहतरी ना सकी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक नवाज शरीफ को माइनर हार्ट अटैक भी हुआ। सेहत के हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। खून के खलियों के बाद नवाज शरीफ के दिल में भी टूट फूट। साबिक वजीर आजम को जुमरात की शब माइनर हार्ट अटैक हुआ। पंजाब हुकूमत ने भी तस्दीक कर दी। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनके उस हार्ट अटैक से कोई हार्ट में कोई मजीद किसी किस्म की डैमेज नहीं हुई। वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं प्लेटलेट्स बढ़ तो गए, लेकिन अभी नहीं कहा जा सकता कि नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी आ गई। इस वक्त उनका लेवल जो है वो इट इज बैक टू 45,000 व्हिच इज अ कंफर्टेबल लेवल। डॉक्टर ताहिर शमसी बोले 7 से 8 रोज में प्लेटलेट्स 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अगले 7 से 10 दिन में उनके प्लेटलेट काउंट 1 लाख से ऊपर, और अगर हम सब खुशकिस्मत हुए तो ये नॉर्मल हो जाएगा। साबिक वजीर आजम की अयादत के लिए MQM और JUI के वफूद भी अस्पताल पहुँचे, लेकिन मुलाकात की इजाज़त न मिली। नवाज शरीफ से सिर्फ अहले खाना ही ने मुलाकात की। नवाज शरीफ की तबीयत इस वक्त कैसी है और डॉक्टर्स क्या कहते हैं,